गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत के हृदय में विराजमान महाराज की छवि को लाखों बार नमस्कार। आज गुरु जी ने सेवा का मौका दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर हनुमान जाल आंटी के सत्संग को हम सब सुनकर हृदय से आभार प्रकट करते हैं और गदगद हो जाते हैं। हनुमान जाल आंटी ओल्ड संगत में से हैं जो गुरु जी के साथ 2005 में जुड़ी थी और आंटी के पास ढेरों सत्संग हैं हम सबको सुनाने के लिए। गुरु जी की महिमा का गुणगान तो होगा ही होगा। दिल से हम गुरु जी को महसूस करेंगे और अपने बहुत करीब पाएंगे, तभी सत्संग रीडिंग्स का फायदा होगा। रीडिंग तो संगत जी कोई भी कर लेगा, है ना, लेकिन उस समय के अनुभवों को जब सत्संग में कहा जाता है और संगत द्वारा सुना जाता है तो वो एहसास जो है हमें उस एरा में ले जाता है और उस 1-1.25 घंटे के लिए शायद सभी कुछ पीछे छूट जाता है और गुरु जी के चरणों के साथ हम जुड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है सत्संग रीडिंग का यही सबसे बड़ा महत्व है। मल्टीलिंगुअल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने एफर्ट्स डाले कि महाराज ने जिस ग्रंथ को अपने सामने लिखवाया, प्लेस किया, पूरा करवाया, तो आज लाइट ऑफ डिविनिटी हमारे लिए इट्स नॉट ओनली अ बुक, इट्स नो लेस देन एनी ग्रंथ which we read and follow. This is the point. सत्संग सुनने का फायदा तभी है जब हमें उसे सुने और अपने जीवन में उतारें। ज्यादा ना बोलते हुए मैं हनुमान जाल आंटी का स्वागत करती हूँ। आंटी वी वेलकम यू एंड प्लीज कम एंड आई होप you will tell us lots and lots of experiences which will benefit us. Thank you so much. Thank you so much. I hope I am audible clearly and auntie, very much audible. Okay, because it's raining very badly outside, so whatever best I can put in, I would try to do it. Thank you again, all of you, and for making such a remarkable effort, to get the satsang read and hear the personal experiences of the sangat. It's been a pleasure not only for me but also for everybody who is able to know Guruji's Mahima. So I'll just brief up and start with my own introduction and how I spent time with Guruji. So it was in November 2005. I was staying in Delhi. Now we have shifted to Bombay. So it was in 2005 November when I met Guruji. Like one of my friends, she told me, Olga Bhatia. Olga was she was the one who took me to Guruji. And Olga ने मुझे एक दिन बोला कि there is one Guruji Maharaj who blesses you with the chai prasad, with the langar prasad and cures all your problems. So me and my husband, we decided to go. Okay, let's go and meet Guruji Maharaj. Of course, I had no faith and I did not know who's Guruji, but we were very inquisitive to go and seek his darshan. So we started from our place for Empire Estate, which was about more than 22-23 kilometers from GK. And रास्ते में जब हम जा रहे थे, so my husband wanted to go to the washroom. His name is Amir, and I told him कि ऐसी जगह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पर आपको घर से बाथरूम होकर जाना चाहिए, because we cannot go and look for a washroom there. That how do we know वहाँ पे होगा या नहीं होगा? It is not right. Now this conversation got over in the car and when I reached Empire Estate, मेरे मन में 100 प्रश्न थे कि मेरे को गुरुजी से ये पूछना है, मुझे वो पूछना है, कौन है, lot of doubts, lot of queries, I was very inquisitive. So when I reached Empire Estate, Guruji Maharaj was sitting on his gaddi, such a royal, magnanimous,
amazing, beautiful aura. मतलब I was like, it was love at first sight. Because इतने बड़ा मतलब इतना grandeur is never somebody who belongs to earth. It was 100% divine, and I was kind of zapped and overwhelmed seeing कि इतने magnanimous कौन है ये जो बैठे हुए हैं. And so there were the darbar was there. गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे. And जैसे ही मैंने एंट्री करी with my husband, गुरुजी told me घर से बाथरूम होकर आया करो. Now it was so embarrassing because there were so many people, and I told my husband, see, because of you I had to listen to it and all that. So, but you know, we are not, Guruji is trying to tell us by that I am omnipresent. See, I am all around you, and जो भी आपके साथ हो रहा है, it's all, I am aware of it. So that was the first way of telling me that who is he. Now still I was, then he asked me किधरों आए हो, and I said Guruji GK कहते हैं गटर कैलाश. So I said हाँ जी Guruji, because वो GK को गटर कैलाश बोलते थे. And I said हाँ जी Guruji. So then I was like just answering him. I was in kind of love with him because मुझे लगा कि ये कितना amazingly, मतलब मेरे अंदर 100 सवाल, 100 प्रश्न, जितनी भी queries थी सब खत्म थी, because I didn't know what to ask. I was numb. I was in awe of him. कि मुझे पता ही नहीं क्या पूछना है. It was like a state of forgetfulness. I didn't know what to ask for. Then Guruji told me कि love marriage. Now my husband said वो तो कोई भी बता देगा love marriage है, because I am tall, you are short, I am thin, you are fat. So our own things that we talk, and so we laughed it out. And then Guruji told me जा बैठ जा, and I sat there. Now I find myself today, if I remember and think about that time, that how during the first meeting itself Guruji spoke to me, because I believe my need was so much that I was in desperation to talk to Almighty, because I had gone in a state where my mental peace was practically zero, and I was in want of everything, though everything was there, but I was honestly in want of everything. So Guruji then told me to sit down, and I was wearing a gemstone. मैंने emerald पहना हुआ था, पन्ना. And Guruji said एक ही पाया हुआ है. I said Guruji किसी astrologer ने मेरे को दिया था, and I'm wearing that. So he told me ऐ ना तू उतार दे, ऐ तू ग्रह पाए हुए ने. So I immediately took off my ring and kept it aside कि गुरुजी ने मुझे बोला ये नहीं पहननी. So he said तू ग्रह पाए हुए ने. So of course it's very inevitable that he didn't want me to wear it. And then he asked me 10 तेनू की चाहिए है. Now we must not forget, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे A to Z सब चाहिए था. I don't want to lie, I wanted everything. There was I'll give you the details what all I wanted. And so अब वो भी दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, and I told गुरुजी आपकी blessings. And he again asked me 10 तेनू की चाहिए. And again I told गुरुजी आपकी blessings चाहिए मुझे. So he said जा बैठ जा. So that was the day, I'm honestly telling you, when my mental peace was zero, I was in want of everything, and within no time that mental peace which was zero was restored to 100. And Guruji gave me everything that I had wanted, not in terms of what I wanted, but some much more that I could have ever comprehend for, asked for. So that's our Guruji Maharaj. I believe that Guruji is not only a saint or a Mahapurush. He is Bhagwan. He is Malik of the Brahmand, and not only this universe but all the parallel universes what we can think of. And it's the sheer good luck and fructification of all our good karmas that Guruji met us, and he took all of us in our sharan. Now, Auntie, आप जैसे बोलेंगे, I can still go on and on with my verbal satsang, and then I will read it, or you want me to read it and then accordingly साथ I should tell the satsang. Whatever way you want, I can interact. जी आंटी, थोड़ा सा रीडिंग शुरू करेंगे और फिर महाराज की महिमा का वर्णन करते रहेंगे. Because I can go on and on, honestly. I know that. गुरुजी आपको खड़े होके बहुत बार बोलते थे सत्संग सुना. जी. He has remember
कभी भी कोई मिनिस्टर और कुछ लोग आते थे तो गुरुजी हमेशा कहते थे, हाँ जी, खड़े होकर सत्संग सुना अपना, शॉर्ट ही सुनाई. Absolutely true. Very true. Very true. So I'll start reading and then in between I'll speak up also. आंटी एक छोटी सी बात बिफोर वी स्टार्ट कि जब भी आप महाराज सामने बैठे होते थे और आप दरबार में होते थे तो फील कैसी होती थी? डिवाइन शब्द मुझे लगता है बहुत छोटा हो जाता है. बिल्कुल छोटा है. मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है जो मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दूं. वही शब्द मैं सुनना चाहती हूँ आपसे. आई विल टेल यू. गुरुजी के पास जब मैं बैठती थी, मैं आपको सच बताती हूँ, माई डॉटर वॉज 4 years दैट टाइम एंड टुडे शी इज 22. सो इतने छोटे बच्चे को अगर आप घर छोड़कर आते हो ना, तो यू आर ऑल द टाइम विलिंग टू गो बैक होम. ट्रस्ट कि आई नेवर वांटेड टू कम बैक. मेरे को होता था मैं यहीं पर रहूं गुरुजी के पास, बिकॉज जो द अमाउंट ऑफ लव, द अमाउंट ऑफ अफेक्शन, द अमाउंट ऑफ द पीस, एवरीथिंग यू नेम इट, आई गॉट फ्रॉम गुरुजी. मतलब ही वॉज लाइक इतने, मतलब we could feel that warmth, that love, that affection, which is never in human capacity. It is 100% in the divine capacity. Because मुझे ये पता था मालिक गुरुजी, it's not that कि वो physically present थे तो I had a doubt कि वो नहीं है भगवान, but जो first time ही presence था उनका, first time ही meeting था, that only made me in love with him, honestly speaking. But yes, मेरा surrender took some time, which I will also tell you about. But I knew I was at the right place. It is like a soul calling. When I was overwhelmed, I was crying right there. और आप तब रोते हैं, that was like out of happiness, out of when your soul actually sees Paramatma. So I think it was that. My soul had met a master. So it's that. And I am putting it simply, but I am telling you, each and every moment that I had spent with Guruji is just right live with me right now, and I can still feel the goosebumps because मुझे जो गुरुजी ने, कहते हैं ना कि आपको भगवान गुरुजी तब मिलते हैं या तो आपके टाइम में, लाइफ में टफ टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है. I am telling you, I thank my negative, those stars which made me so unhappy that I had to meet Bhagwan, had to meet me. So उनको भी मेरे को ऐसे लगता है कि जो चीजें उन्हें मेरे को तंग करा था उस समय या परेशानी थी मेरे को, जिससे उनको मुझे हार पहनाना चाहिए कि थैंक यू, आपके कारण मुझे भगवान से दर्शन हो गए. इट्स सिंपली दैट. तो हाँ जी, तो मतलब वो मेरा प्लैटिनम या उससे भी कुछ रेयर चीज होगी वो पीरियड था लाइफ का, when actually I was in need of everything, but मुझे सब कुछ छोड़ के सबके मतलब ब्रह्मांड के मालिक मिल गए मुझे. So I proclaim that I have met God. So if somebody asks me, have you met God? Yes, I have met God. That's Guruji. Guruji is my God, my life, my divine, my way of life, my purpose. I mean, what all I can say, मतलब मेरे को वो सब कुछ है मेरी लाइफ में. He is that. And yeah, 100%. Blessing is also a small word actually, है ना. So हमें सब कुछ मिल गया in the form of Guruji Maharaj. And so I will keep on telling my satsangs. Let me just start with a reading. Yeah, absolutely. So it's for my most dear and sweet Guruji. I thank all my stars for the day Guruji came into my life. My life has been transformed, and it seems all my worries have finally bid me goodbye. That's because Guruji is divine, he is almighty. I had come to Guruji in November 2005 when a friend told me about him. I had come laden with problems, monetary issues, family disturbances, niggling anxieties and tensions. Nothing seemed to be in place. I had no mental peace. No is also a very small word. I had zero mental peace, let me tell you frankly. So I began going to Guruji, and one day he talked to me. It made my day. 2 months after so this is when it is saying that one day he talked to me, that was right the first day when Guruji talked to me, and I shared that conversation also. So it made my day. 2 months after I had met Guruji, after I had his darshan, my father had to be immediately hospitalized. He had pneumonia and he had to be put on a ventilator. The doctors told us that there was just 10% chance of his survival. I went to Guruji's mandir and silently prayed to him. In a vision, I saw that Guruji had gone with me to the hospital
taken my father off the ventilator and cured and blessed him. So I will tell you about this incident, my father's satsang also. Guruji मुझे हमेशा बोलते थे अपने प्यो दा सत्संग दस, and that I used to share with, I mean I've practically shared so many times whenever anybody used to be there. So these हाँ जी, छोटा सा इंटरजेक्शन है यहाँ पे जी। लिखा गुरुजी's मंदिर and silently prayed. yes, So I will tell that. can you define this silently? Why Guruji used to say that prayer should always be silent? It's for the Okay, Sangat to know. जी जी जी. सो आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि गुरुजी इज अ पावर हाउस, एंड गुरुजी हमें बोलते थे तब जो मैं कि पूछया ना करो. नाउ आई बिलीव द सिंपल रीजन फॉर दैट इज बिकॉज हम जब जा रहे हैं भगवान के पास तो हमारे साथ क्या क्या नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्या हमारे पास लोग, मतलब वी डोंट नो हु ऑल आर गोइंग विद अस फ्रैंकली. सो एनीथिंग विच इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी विल बी एम्पावर्ड. So अगर हम उसको नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी is knowing everything. He scans us not only of that moment but present, past, everything. That's all which is with us. So I believe हमारे को जब वो कहते थे कि पूछा मत करो या don't interfere, so it's like working in the universe, working in the God's ways. We have no idea of what Guruji is already doing with us and how is he treating us and all our problems and all our worries. So Guruji is there to bless us. He is like a powerhouse. अगर हम अपनी प्रॉब्लम को भी उनके आगे बोलेंगे तो आई बिलीव इट विल ऑल्सो गेट एनर्जी. सो सो इट्स माई ओन इंटरप्रिटेशन फॉर दैट कि वो कभी नहीं चाहते थे कि हम पूछे, बिकॉज उनको पता है वो हमारा किस लेवल पे काम कर रहे हैं. हमारे को तो वी हैव सच अ मायोपिक विजन, वी कांट इवन वी कांट इवन सी बियॉन्ड व्हाट गुरुजी इज ऑलरेडी ट्रीटिंग. सो इट्स दैट सिंपल आई बिलीव. Absolutely right, auntie. If you remember, Guruji used to say, "तुसी मंग के अपना केस खराब कर लेते हो." जी जी. Do you remember this? He always used to say कि मंगो ना मन्नो, मंग के तुसी अपना केस खुद ही खराब कर लेते हो. तुहानू की पता मैं तुहानू की दात देने वाला वहाँ. बिल्कुल जी, बिल्कुल. तो आंटी थोड़ा सा हम इंग्लिश में रखेंगे संगत. ठीक है, I'll use both the languages. हाँ जी, हाँ जी. अब आप पहले अपने पापा का सत्संग सुनाएं. पापा का मैं आपको बताती हूँ. तो my father, पापा को स्लीप एपनिया था. नाउ माई फादर इज नो मोर, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज 64 years old एंड उनको स्लीप एपनिया था बिकॉज ऑफ विच उनके लंग्स में पानी भर गया था. सो दैट वॉज अ वेरी सिवियर निमोनिया. एंड हम लोगों को, मतलब आई वॉज इन साउथ दिल्ली, मेरे फादर नॉर्थ दिल्ली में रहते थे, तो मेरा ब्रदर इन लॉ टुक हिम टू द हॉस्पिटल, रश हिम टू द हॉस्पिटल एंड उन्हें एडमिट कराया. तो डॉक्टर्स ने उनको पहले दिन ही वेंटिलेटर पे डाल दिया, बोल के कि ही कैन नॉट, ऑल हिज बॉडी ऑर्गन्स हैव गिवन अप, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड जस्ट 10% चांस है उनके सर्वाइवल के. So this happened on Monday. Now गुरुजी का दरबार एम्पायर स्टेट में थर्सडे ऑनवर्ड्स होता था. एंड बट समहाउ मुझे कोई, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को कोई इतना वरी नहीं था जबकि पापा वेंटिलेटर पे चले गए थे. बट समहाउ आई हैड दैट एनर्जी ऑफ गुरुजी वेयर आई फेल्ट कि एवरीथिंग विल बी ओके. तो थर्सडे को आई वेंट टू द एम्पायर स्टेट. आई वाज सिटिंग एट द लास्ट सीट, जो उनका गुरुजी का बेडरूम था, बिल्कुल जहाँ पे डीजे अंकल होते थे. तो आई वाज सिटिंग एट दैट सीट एंड मेरी आईज वर शट एंड मैं सिर्फ गुरुजी से मन में प्रे कर रही थी. तो तभी मुझे एक विजन आया कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने मेरे फादर का वेंटिलेटर उतारा है और ये बोला है 10 एसडी की लोड है, ऐसे उतारो या ऐश कर ब्लेस कीता. सो एंड मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए हैं एंड ही इज ओके. और गुरुजी, मतलब गुरुजी ने जाके हॉस्पिटल में खुद करा. पर जब मैंने अपनी आईज खोली तो आई रियलाइज कि मैं तो एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ एंड वी एज ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट बिलीव इजीली. तो हम लोगों को लगता है कि मिरेकल होना चाहिए या ये कैसे हुआ. सो इट आई जस्ट थॉट कि ये मेरा सिर्फ एक थॉट है, एक विजुअलाइजेशन है. सो उस दिन मैंने, हमें आज्ञा लेनी थी गुरुजी से लंगर प्रसाद के बाद, तो मैंने चरण छू के गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे फादर बहुत बीमार हैं और वो ऐसे ऐसे हैं. तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. ही वॉज जस्ट क्वाइट एंड साइलेंट. सो माई हस्बैंड टोल्ड मी, आई एम श्योर तेरे फादर की अब लाइफ नहीं है. एंड
But again we do so I went back and जब मैं फ्राइडे को मॉर्निंग में हॉस्पिटल पहुंची आईसीयू में, मेरे फादर का वेंटिलेटर उतर चुका था एंड वो उसी समय उतरा था जब मुझे विजन आ रहा. So that was not just my vision, it was actually happening where Guruji did it. Yeah. And हाँ जी, तो मैं बहुत आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे डैड को क्योर कर दिया है. सो सैटरडे अगेन मैं शुक्राना करने के लिए उनके पास गई थी एम्पायर स्टेट फिर से. एंड मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए, थैंक यू. कहते हैं देखा फिर कर देता. सो दैट वॉज द डे ऑनेस्टली ऑफ माई कंप्लीट सरेंडर वेर आई न्यू कि मैं भगवान की शरण में हूँ. मतलब मेरा तब सब 101% सरेंडर था गुरुजी के लिए. एंड मुझे कोई आयोटा ऑफ अ डाउट भी नहीं था कि ये मेरे परमात्मा नहीं है. दैट्स अ फैक्ट. एंड आप मानोगे नहीं, मैंने इसमें सत्संग में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं बिकॉज मेरे को मे बी उस समय याद नहीं था या वो आफ्टर. तो मैंने अपनी गाड़ी मोर देन 50-60 किलोमीटर विदाउट पेट्रोल चलाई हुई है बिकॉज मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होता चलवाते हैं. तो मैं सोचती थी गुरुजी मेरी जब चलवाओगे तो मैं मानूंगी. देन मैंने पंचर्ड गाड़ी चलाई हुई है. कैन यू बिलीव इट, माई कार गॉट पंचर्ड. आई हैड टू गो वेरी फार ऑफ and I had a lot of money because my father had sold off a house and I was carrying about 30-40 lakhs with me, which was in 2006 or 7 I believe. And my father told me कि मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ, मेरी डील हुई है, you take it to GK. Now the moment I came out of the house, my tire was punctured. तो my mother was very scared कि अब तुम घर चलो वापस because इतना कैश है आपके पास. मैंने कहा मम्मी गुरुजी कब काम आएंगे. मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ एज इट इज. तो मैंने तब गुरुजी को बोला मन में, गुरुजी नाउ यू आर विद मी, मुझे कोई डर नहीं है. मैंने सिर्फ अपना टायर इन्फ्लेट कराया एंड आप मानेंगे नहीं, आई कुड रीच जीके विच वॉज अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वॉज. एंड जब मैं जीके की अपनी पार्किंग में एंट्री करी, मेरा तब टायर जाके फ्लैट हुआ. अगेन मतलब एवरी टाइम आई हैव ट्रबल्ड गुरुजी. ऑनेस्टली मैंने उन्हें बहुत तंग करा हुआ है अपने प्रश्नों से, अपने बिहेवियर से. उनको मतलब मैंने आई यूज्ड टू टॉक टू हिम. जब मेरे मन में कोई प्रॉब्लम होता था, कोई इच्छा होती थी, कुछ डाउट होता था, मैं उनको तंग करके पूछती थी. और वो इतने प्यारे भगवान है, उन्होंने मेरे को हर चीज का आंसर दिया है और इतना प्यार दिया है. मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी औकात से और सोच से कहीं ज्यादा मुझे गुरुजी ने लव करा है. एंड आई एम इंडेटेड टू हिम फॉर द all my lives and janmas that I have met him. मतलब that's what I can say. I'm talking straight from my heart because मेरे लिए वो आज भी उतने ही पावरफुल, उतने ही अमेजिंग और उतने ही पर्सनल भगवान है मेरे को ऐसे लगता है. एंड कोई भी वरी या डाउट होता है, सो आई जस्ट टेल कि गुरुजी आप देख लो, प्लीज यू टेक द चार्ज. और मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी ही इज टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स एंड द सिचुएशंस. सो दैट इज आवर गुरुजी. आई मीन गुरुजी कहते थे आंटी जब डॉक्टरी फेल हो जाती है फिर मेरा काम शुरू होता है. हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बोलते थे ना, बहुत बार बोलते थे डॉक्टरी फेल करके मेरा काम शुरू होता है. हाँ जी एब्सोल्युटली जी, है ना. एक छोटी सी बात और बताएं. ठीक है गुरुजी हमारे भगवान हैं, ही इज मोर देन गॉड टू अस, वी ऑल एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू नो. बट अ स्मॉल थिंग, have you ever seen him in any other भगवान का रूप except गुरुजी? Could you ever feel him in any other रूप like शिव जी का रूप या कृष्ण? I tell you, देखो मेरे को आफ्टर आई मेट गुरुजी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी भी मुझे हर जगह गुरुजी नजर आते हैं. इन द सेंस इफ आई गो टू हनुमान जी का मंदिर, मेरे मुंह से हमेशा जय गुरुजी निकलता है. इफ आई गो टू एनी शिव टेम्पल, मेरे मुंह से जय गुरुजी. बिकॉज जोत तो एक है, बट मेरे को ऐसे लगता है मुझे प्रिंसिपल मिल गए, सब टीचर्स हैं. मैं आपको सच बता रही हूँ अपने थॉट. एंड मैंने गुरुजी को एक दिन सुना था किसी को बोलते हुए कि अपना मंदिर चक दे. तो उन्होंने उसको बोला, पर सुना मैंने, तो मैंने घर आते ही अपना सारे मंदिर की जितनी भी मूर्ति थी, जितने भी सामान था, मैंने सब पैक करा एंड आई गिव इट टू द मंदिर. सो मेरे घर सिर्फ एक गुरुजी का स्वरूप तब से है. उसके अलावा मैंने कोई मतलब आउट ऑफ डेकोरेशन मैंने जरूर कर दिया होगा, बट देयर वाज नथिंग डिवोशनल अबाउट इट. वॉट एवर आई लाइक आई हैव, मैंने मतलब मेरे घर में कोई भी किसी और भगवान की कोई मूर्ति नहीं है सच में. मतलब मेरे लिए दिवाली पे भी आज भी पूजा में गुरुजी की आरती होती है.
अगर हम घर बदल रहे हैं तो गृह प्रवेश में गुरुजी की आरती और मंत्र जाप होता है. For me, he is my one mantra, one God, and who's everything, omnipotent. So that's with me. So I am very straight with that. मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि हर जगह आपका अकाउंट खुलाओ. जो गुरुजी भी कहते थे कि अपने बहुत अकाउंट मत खोलो. हैव फेथ. जो तो एक ही है, चाहे जिधर भी मान रहे हो और जा रहे हो. बट फॉर मी, मेरे को गुरुजी मिले हैं तो मेरे लिए वो मेरे मालिक हैं बस. उसके अलावा जो सब है वो सब, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे वैष्णो देवी कोई कहता है जाओ, मैं बोलती नहीं, मेरे को नहीं जाना. मेरे को यहीं पे मेरे पास सब कुछ है. इनफैक्ट मुझे गुरुजी के मंदिर आई गो बिकॉज वो कहते थे हाजिरी भरा करो. बट मुझे ये लगता है घर में भी आप, मेरे को उनकी फोटो की भी जरूरत नहीं है. ही इज इन माई हार्ट. इट्स सो सिंपल. सो गुरुजी हमें कहीं पे नहीं मिलेंगे, अपने अंदर ही है. वो ट्रेजर हमारे अंदर है. हमें धक्के खाने की कोई जरूरत भी नहीं है उसके लिए. हमारे साथ है, उनकी हर वक्त है वो, उनका ऑरा वो खुद. So that's my belief. There's no need, because कि ये करो वो करो. और यही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रिचुअल नहीं है. So why should we get into that ritualistic behavior, mantra, आरती and all that, and let it go comfortably. मुझे कोई वहम नहीं है गुरुजी के पास आके. 1% भी नहीं है. मेरे गाड़ी के आगे से बिल्ली रास्ता काट दिया, I purposely go कि बिल्ली बड़ी है कि वहम बड़ा है, Yes, So yes. this is my गुरुजी शिक्षा to me. कि अपना अच्छे, सिर्फ मुझे एक चीज से डर लगता है, वो मेरे बुरे कर्म है. अगर मैं कुछ गलत करूंगी, दैट इज बैड फॉर मी. बट मुझे कोई और डरा नहीं सकता है. आई एम वेरी चिल्ड आउट. ओनली माई बैड डीड्स विल आर बैड फॉर मी, नथिंग एल्स. गुरुजी से मेरे को आई कैन टॉक एनीथिंग, और आप मानोगे नहीं, मैं उससे सब बातें करी हुई हैं जो सोच भी नहीं सकता है कोई. मैंने, बिकॉज फॉर मी, आई नेवर ट्रीटेड हिम लाइक माई फादर. आई ट्रीटेड हिम लाइक माई बिलवेड. आप एक अपने बिलवेड को सब कुछ बात कर सकते हो. फॉर मी गुरुजी इज माई बिलवेड, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, माई एवरीथिंग. मैं आपको बताऊं. दिस इज द फैक्ट. That's why you have written most dear and sweet. ये मैंने ना मोस्ट डियर की जगह स्वीटेस्ट लिखा था, उन्होंने एडिट करा है बिली. So for me is that. Auntie, this is possible only if you have surrender. This is the highest pinnacle, I think. That is why you can feel all this for him. It's a blessing in disguise that Guruji has blessed you so much. Guruji कहते थे, जुतिया ने डाल अहम और वहम बाहर छट के आना, मेरे को लाओ कहते. बिल्कुल जी, बिल्कुल. तो अगर हम आज भी इस बात को इसी तरह लेके चलते हैं ना, तभी हम महाराज की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं. हाँ जी, तभी उनको हर समय अपने साथ देख सकते हैं. हर सुख दुख में उनको पूरी तरह सरेंडर करके उनके ऊपर छोड़ सकते हैं. अच्छा महाराज, उनकी इच्छा. बिल्कुल जी. और मेरे को लगता है सरेंडर इज सच अ इजी थिंग, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं हमें करना क्या है. आवर लाइफ, आवर प्लानिंग इज जीरो. आवर लाइफ इज, ऑनेस्टली, हमें अगला पल नहीं पता. हमें अगले पल के सांस का नहीं पता है हम क्या प्लान करेंगे. जी जी. तो सरेंडर इज इजीएस्ट, आई बिलीव. एंड व्हेन गुरुजी इज विद यू, आप पूरी चौड़ में घूमो. लेट द होल वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू, मैन डजंट मैटर. हमारे साथ गुरुजी है. और अगर हम हमेशा बोलती हूँ आंटी, हम गुरुजी के बिगड़े हुए बच्चे. बिल्कुल. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, महाराज ने ना जय ऐश कर बोल के हमको बिगाड़ दिया. अब हम किसी से दबते नहीं है, किसी से डरते नहीं. हमको लगता है महाराज है ना साथ में. बिल्कुल जी, 100% है, 100%. मैं वही बोलूँ ना, हमारी रॉन्ग डीड्स हमें दबा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं दबा. इसके अलावा कुछ ये फैक्ट है. तो let's start. हाँ जी. So soon, with Guruji's permission, I told him about my father's ailment. The next day when we went to the hospital, I was amazed to find my father all right. His life support system had been removed and Guruji had saved my father and gave him a new life. And I began experiencing Guruji's miracles very often after this incident. I found out soon enough that he is omnipresent and takes care of all your problems. My husband is a case in point. His financial deals were stuck and we were facing an economic crunch. Yet the deals got sorted out on their own and all our money worries were soon over. Okay, 1 second. Yeah. The health of my daughter also was a source of worry for me. She had a recurrent and troublesome UTI, urinary tract infection.
Guruji blessed her with a copper tumbler. She drank water from it and soon was well. So I'll tell you this also. Now, when I was going to Guruji, my daughter was just 4 years old, and a baby को UTI होने का कोई point नहीं होता है, because there is no contact with anybody. She is not using the public toilets, but she had UTI and it was not being cured. I went to the doctors, but somehow or the other उसको सारी antibiotics जो है वो resistant हो गई थी. And I was into really a fix. So one day I told Guruji, Guruji मेरी daughter का नाम आमना है. I said, Guruji मैं आमना के लिए आपके आमना की UTI है उसका बताओ. तो he said जाके छोटा लोटा लेके आ जाओ. I said हाँ जी. तो मैंने लोटा लेकर आई मैं, and आप मानेंगे नहीं, उस लोटे में से मैंने सिर्फ उसको एक दिन जल दिया था. After that her reports were sterile और आज तक she is okay. Never ever it has happened. Today she is 22, 23. तब से आज तक उसको एक बारी भी touchwood there was no trace of any kind of infection or any issue because Guruji told कि उसने लिए छोटा लेकर आ. अब मेरे को भी बहुत ब्रोंकाइटिस होता था, इतना कि मैं I used to pant like dogs and I used to be on high dosage of steroids and मुझे मतलब इतना होता था कि मैं गुरुजी के जैसे अंदर जाती थी एम्पायर तक चल के, तो मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस हो जाती थी. मैं हॉस्पिटलाइज भी होती थी इसलिए कि मेरे को नेबुलाइजर्स नहीं काम कर रहे थे एंड हाई डोसेज ऑफ स्टेरॉइड जाता था, फॉर विच आई आल्सो हैड गेन लॉट ऑफ वेट. जी. सो वन डे आई टोल्ड गुरुजी, गुरुजी मुझे बहुत ब्रोंकाइटिस होता है. कहते हैं तेनू कुछ नहीं है. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड गुरुजी आपको पता नहीं चल रहा है, मैं इतना तो मेरे को सांस चढ़ जाता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो. आई मीन सी व्हाट वी डू वी ह्यूमंस. So that's what I was arguing with Guruji. He said, नहीं तेरे को कुछ नहीं है. And I'm honestly indebted for the fact Guruji ने जो उनके words से मुझे कुछ नहीं है. मतलब my bronchitis, those steroids वो कहाँ चले गए मुझे भी नहीं पता चला. How Guruji cured me 100%. And he just made उनका जो words थे they are like gospel. जो वो कहते हैं वो मतलब वो एक लकीर है पत्थर की. वो गुरुजी ने actually blessed me with my health also. मैं उनसे बहुत बार पूछती थी गुरुजी मुझे पतला कर दो, तो कहते थे जा दफा हो सैर करया कर, तेनू किसी चीज की लोड़ नहीं है. सो टिल डेट आई एम नॉट सो रेगुलर विद द वॉक्स विच इज वेरी बैड, बट गुरुजी ने जो बोला, और मुझे इतने प्यारे गुरुजी हैं, कहते हैं मैं तेरे को नहीं बोल रहा तेरे वेट को बोल रहा हूँ, दफा हो. मतलब इतना प्यारा भगवान, ओ गॉड, हमारा शेयर गुड लक है जो हमें वो मिले हैं. मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ ना, मैं तो उनको बहुत बहुत सवाल पूछ के तंग करती थी. एंड मैं उनको जब मैं जाती थी तो आई यूज टू मैं उनको पैर छूने के साथ साथ उनकी किस करती थी हमेशा, चाहे मेरे को पैर पे जगह मिले चाहे हाथ पे मिले. गुरुजी अपना हाथ दो मुझे किस करना है. एंड यूज टू गिव मी हिज हैंड. एंड एक दिन उन्होंने पिंक टी शर्ट पहनी थी, मैंने बोला गुरुजी बड़े हैंडसम लग रहे हो. वो ब्लश भी कर रहे थे सच के. अब मतलब मुझे लगता है मैंने उन्हें, सो दिस वॉज द वे ऑफ हाउ आई डिड. एंड गुरुजी आफ्टर माई फादर्स रिकवरी हमेशा बोलते थे अपने माँ प्यो अपने प्यो दा सत्संग दस. तो जितने भी मिनिस्टर्स और वीआईपीज आए होते थे गुरुजी मुझे जरूर खड़ा कराते थे कि अपने डैड का सत्संग बता. सो एक दिन मैं जब घर से जा रही थी तो मैं आई यूज्ड टू ड्राइव डाउन अलोन बिकॉज माई हस्बैंड्स बिलीफ वॉज नॉट द वे आई माइंड वॉज. एंड I used to go alone and मेरे को ना कोई भी इतना ओवरवेलम होता था जाते जाते. I used to cry. पता नहीं मुझे खुद नहीं समझ आता था why I'm crying so much, because it was sheer love for Guruji I believe, and I used to miss him so often कि मेरे को मतलब बहुत होता था कि मुझे उनसे मिलना है अभी. एंड so मेरे मन में था कि I love you बोलना है मुझे आज गुरुजी को. एंड आप मानेंगे नहीं, मैंने जब मैं वहां पहुंची तो मुझे गुरुजी ने ना बोला कि सत्संग दस. उस समय ये सब लोग थे, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, आई थिंक शत्रुघ्न सिन्हा, मेनका गांधी, एवरीबडी वाज देयर. तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे को मौका नहीं मिलेगा गुरुजी को आई लव यू बोलने का. बट एनीवेज मैंने वो सत्संग शेयर करा पापा का. सो जब वो शेयर करके खत्म हो गया तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के बोला, जब तू आई सी तद ते होर गल सी, हुण तू गुरु बिना नहीं रह सकती. So that is, yeah, this is what I had said him. So मैंने so sweet, so sweet. so sweet. तो तब मुझे गुरुजी ने बोला कि जब ये बात बोली तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपको आज आई लव यू बोलना था. एंड आई लव यू. कहते हैं लव यू लव यू. तो ही दैट इज गुरुजी. मतलब उन्होंने जो मेरे को आज तक वो एक एक वर्ड एक एक चीज याद है, बिकॉज हाउ गॉड नोज. अब
मतलब एक डेड कॉर्नर आपके हार्ट का, वो भी उनको पता है उसमें क्या है। आप भूल जाते हो, गुरुजी नहीं भूलते। नहीं भूलते, नहीं एंड भूलते। हाँ जी, मतलब माय हस्बैंड ऑल्सो डिड नॉट बिलीव द वे आई डिड एंड यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि हर वक्त देखो गुरुजी पे जाना होता है, क्या है ये वो। एंड तो मैं बोलती थी गुरुजी मुझे ना कई बार अमित आपके पास नहीं आने देता है। कहते कोई गल नहीं, बड़ा चंगा मुंडा है। आई सेड कोई चंगा नहीं है, आप डील करके देखो ना, आपको पता चलेगा गुरुजी। तो कहते थे नहीं नहीं बहुत चंगा मुंडा है, और गुरुजी ने उस इतना चंगा बना दिया अमित को। मतलब टुडे आई बिलीव ही फेथ इज मच मोर, और मे बी he loves Guruji like how, and how he changed everything. So one day I'll tell you an incident. My sister-in-law was in London that time, and अमित मेरे को बोल रहा था कि अगर गुरुजी कुछ है ना तो मेरी सिस्टर का नाम बताएं। ये हमारे घर में ही झगड़ा हो रहा था ऐसी किसी बात पे। इस बात को 1.5 या 2 महीने हो गए, एंड इट वाज अ गुरु पूर्णिमा डे। सो माय सिस्टर इन लॉ वाज कमिंग फ्रॉम लंदन, एंड मैंने उसको कुछ घर में इश्यूज थे, तो मैंने कहा चल आई टेक यू टू गुरुजी। नाउ व्हेन आई टुक हर टू गुरुजी, आई टोल्ड गुरुजी ये मेरी, कहते हैं कौन है। आई सेड उस दिन बड़े मंदिर में हम बैठे थे, व्हाइट कलर के चोले में थे गुरुजी। एंड जैसे ही उसने मत्था टेका तो मुझे गुरुजी कहते हैं कौन है। आई सेड गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ है। कहते हैं ननान है तेरी। आई सेड हाँ जी। तो जैसे ही उसने मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं आ गई डॉक्टर चेतना मेहता, बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश, शी इज अ बीडीएस डॉक्टर। सो ही नेम्ड हर एंड सेड आ गई चेतना मेहता, बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश। और मुझे जैसे इशारे से आंखों से करके बोल रहे, देख मैंने आंसर दे दिया इस बात का। दे दिया। मतलब वो बात ऑनेस्टली मैं भूल गई थी 2-2.5 महीने पहले जो मेरी अमित से कॉन्वर्सेशन हुई थी कि अगर कुछ वो है गुरुजी तो बताएं। एंड उनको तो वो भी याद होता है, हमें नहीं याद होता ना, उनको तो सब पता है। सो देन आई टोल्ड माई सिस्टर इन लॉ, आई सेड तू भगवान के आगे खड़ी है, यू नो दैट्स अ फैक्ट। एंड गुरुजी मुझे आईब्रोज जैसे ऊपर करके इशारा करके बोल रहे हैं, देख आई हैव आंसर्ड यू, यू नो। एंड उस दिन ना मुझे गुरुजी चंद्रमा में नजर आ रहे थे, तो माय हस्बैंड सेड तू तो ऑब्सेस्ड है गुरुजी से, देखो तो हर जगह वही नजर आते हैं। सो आंटी उस एनडीटीवी, गुरु पूर्णिमा पे सबको गुरुजी दिखे थे चांद हाँ में। मैं और एग्जैक्टली। इनफैक्ट थोड़ा लेटर, मतलब 12 बजे के करीब गुरुजी ने खुद क्या, जाओ थे कि बैठे हो, जाओ जाके बाहर देखो चंद्रमा के चंद्रमा दर्शन में, हाँ करो। जी। और इसका मैंने ऑथेंटिकेशन अमित को बताया, मैंने कहा अमित मेरे को हर जगह नहीं है, वो है वहां पे। उस दिन एनडीटीवी में न्यूज आई थी कि अ बाल्ड मैन वाज सीन इन द मून। यस। सो दैट Wow. इज अगेन, हाँ जी, तो दैट्स अ रीअश्योरेंस कि गुरुजी कैसे आपको हर चीज, यू नो ही टेक्स केयर। एंड मैं आपको एक और बताती हूँ, ये छोटा सा कैसे वो हमारे मन का हर थॉट पढ़ते हैं। एक दिन मुझे मैं वहां पे बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट में, तो एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला, सेवादार थे वो, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट ही टोल्ड मी कि आप आज फिर आ गए हो, आप तो कल भी आए थे, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपका ना रिस्ट्रिक्ट करवा दूंगा आना, मतलब आई विल मेक इट टू 1 day और समथिंग इन अ वीक। मुझे बड़ा मन में आया कि हु इज ही टू टेल मी, और मैं तो एक दिन पहले गई भी नहीं थी, ही इज जस्ट बीइंग कंफ्यूज विद समबडी। तो मैंने उन्हें बोला अंकल मैं नहीं आई थी। कहते नहीं नहीं आप आए हो, अगर आप ऐसे करोगे ना तो मैं एक बार करा दूंगा आपका हफ्ते में। मेरे मन में था गुरुजी आपको इसको आंसर करना है, यू हैव टू टेल इट। आप मानेंगे नहीं, मैंने बस इधर मुझे लगा, मैं पता नहीं क्यों, मेरे को हो सकता है गुरुजी का ही हुक्म हो, ये उन्होंने ऐसे बोला है। सो आप मानोगे नहीं, जब मैं गुरुजी से मत्था टेकने गई तो मेरे को गुरुजी ने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं उनसे बात करी। आई वॉन्टेड एन आंसर टेलीपैथिकली, बिकॉज गुरुजी कहते थे ना अपने एंटीना खोलो, टेलीपैथिकली मेरे नाल गल्ला करा करो। सो ही टोल्ड मी गुरुजी कि तू ना हफ्ते 4 दिन आ सकती है संगत लेके। Wow. वाह Wow. वाह वाह वाह, जय तो महाराज, तो जय मैंने इतना महाराज। थैंक यू बोला, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आपने मेरा आंसर दिया। एंड उन अंकल को मैंने जाते ही बोला, अंकल डेयर नॉट टॉक टू मी नाउ, मुझे मालिक से हुक्म मिल गया है। सो दैट इज Wow. आवर गुरुजी, यू नो। सो ही इज अमेजिंग, मतलब हम उनके बारे में जितनी महिमा करें कम है। और उन्होंने, मैं आपको वही बता रही हूँ, हमारे जब मैंने गुरुजी पे जाना शुरू करा था, देयर वर फ्यू पीपल इन माय लाइफ हु वर अ सोर्स ऑफ ट्रबल। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, दे वर लाइक यू नो पीपल हु वर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेज एंड डिसहार्मनी इन द फैमिली। तो मैं जब गई थी मेरे मन में था गुरुजी इनको हटा दूंगा मेरी लाइफ से। विद इन नो टाइम वो कैसे गायब हुए कि हमें पता ही नहीं, जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हो दे वर टोटली आउट ऑफ योर लाइफ। तो जो मेंटल पीस था मेरा 0 करा हुआ था, वो 100 हो गया। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ
कि गुरुजी ने मेरी 0% मेंटल पीस को 100 कर दिया है, और टुडे आई कैन टेक अवे मेंटल पीस फ्रॉम पीपल. दैट इज हिज ऑरा एंड दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस. मतलब ही जस्ट ट्विस्टेड एवरीथिंग अराउंड. 360 डिग्री चेंज कर देते हैं वो आपको. एंड हाउ ही फिल्स यू विद दैट लव एंड अफेक्शन एंड हिज कृपा एंड महिमा, कि उसका कोई भी देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट. So I'll resume further because I अजी can go on and on. छोटी सी एक क्वेरी मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या हम महाराज के दरबार में सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने जाते हैं, Not अपनी enough. इच्छाओं को पूरा करने जाते हैं, या देर इज अ वाइडर एस्पेक्ट टू इट, देर इज अ हायर गोल फॉर दिस? देखो मैं थोड़ा सा जी 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 देखिए मैं आपको बताती हूँ. व्हेन आई हैड स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी, तो मेरा जो विजन था, मेरी सोच थी, वो बहुत क्लोज थी. आई मस्ट से एट दैट टाइम माय पर्पस वाज कि गुरुजी से ये भी पूछना है और ये भी हो जाए, वो भी हो जाए. बट जब एक बार मैं उनके महिमा और उनका जब मतलब व्हेन आई एक्सपीरियंस दैट लव, सो ऑनेस्टली मैंने कभी भी सोचा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, बिकॉज मुझे पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या. तो मेरे को सबसे बड़ा क्या मिल गया, मुझे भगवान मिल गए, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है. सो मुझे लगता है रेस्ट एवरीथिंग इज अ साइड इफेक्ट. वो उनको पता है, हमारे को सिर्फ ये पता है कि हमारे को मालिक, हमारे मतलब जो हमारे पर्पस है लाइफ का, हमें वो मिल गए हैं. तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो बहुत 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 ट्रिवियल है. देर ऑफ नो इम्पोर्टेंस एक्चुअली. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट वेन यू कम टू गुरुजी फर्स्ट ब्लेसेस यू विद द लाइफ, then the health, and then everything, money, marriage, cars, everything is a side effect. Frankly, मतलब आप मांगते भी नहीं हो, आप सोचते भी नहीं हो, पर आपको कैसे वो मेटामोर्फोज कर देते हैं. आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है. आप जो भी चाहते हो, या मतलब वट एवर यू वॉन्ट, यू आर गेटिंग इट ऑन प्लेटर. यू डोंट इवन हैव टू आस्क इट. और मुझे लगता है कि ये सब चीजें मांग के जाना तो अपने आप को छोटा करना है. बिकॉज हमारे को पता ही नहीं हमें मांगना क्या है. दैट्स व्हाट आई सेड, वी हैव अ वेरी लिमिटेड एंड अ मायोपिक विजन. ही इज मच मोर देन दैट. और वो हमारे लिए प्लान कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है क्या हम चाह रहे हैं. मतलब हमारी औकात और सोच से ज्यादा करते हैं वो. गुरुजी कहते थे ये बात भी ना कि तुसी मारुति मंगदे हो, मैं तुहानू मर्सिडीज देने दे चक्कर है. सो इट्स अ फैक्ट एक्चुअली. सो वी डोंट हैव टू आस्क एंड मेक अस छोटा कि गुरुजी हमें ये दे दो, वो दे दो. मतलब मेरे को एक चीज और मन में आती कि जब गुरुजी ने मुझसे पहले दिन पूछा था कि 10 तेनू की चाहिए, अगर मैं वो चीजें क्वांटिफाई कर देती तो कब की लाइन खत्म हो जाती. मैंने उन्हें बोला गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स तो वो एंडलेस है. मेरे साथ खुद गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है हमें गुरु को मांग लो और हमें कुछ नहीं जरूरत है. व्हेन गुरुजी कम्स इट्स एवरीथिंग. बस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू नेक्स्ट. क्या गुरुजी को मांगने की इच्छा कभी मन में आपके आई कि नहीं? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू आस्क. मेरी तो देखो सिर्फ इच्छा ही वही थी. आपको मैं बताती हूँ, इट वाज माय बर्थडे. सो आई वाज इन द मंदिर. मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं आपसे क्या मांगू, मुझे आपने सब कुछ दे दिया, आप खुद ही आ जाओ ना मेरे पास. मैंने ऑनेस्टली ये मांगा और आप मानोगे नहीं, लंगर प्रसाद करके देयर वाज वन अंकल हुम आई डिडंट नो आल्सो, मेरे हाथ में कुछ रख के गए. वो हाथ में गुरुजी का लॉकेट था. एंड देखो मैंने वही उनसे इच्छा की थी कि गुरुजी मुझे आप चाहिए, मुझे और सब कुछ है, मुझे आप चाहिए, आपसे आप ही चाहिए मुझे. एंड वो मुझे उन्होंने वो लॉकेट दे दिया. असर्ट गुरुजी सेइंग कि सी आई एम विद यू. सो मैंने तो, और मैं वही बता रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मुझे मांगना क्या है, बिकॉज उन्होंने मुझे सब दिया है. आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर एवरी बिट. जो दिया उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्रिया. बिकॉज मुझे जो नहीं मिला वो उनको पता है और जो मिला वो भी उनको पता है. सो लाइफ इज लाइक दिस. थैंक यू फॉर एवरीथिंग कि वो मेरे साथ हमारी लाइफ में है. बिकॉज मुझे ये पता है कि सब कुछ इंटैक्ट है बिकॉज गुरुजी है. अगर गुरुजी नहीं है तो कुछ भी एवरीथिंग इज आउट ऑफ प्लेस, ये गारंटी है. हमारे को मालिक है बस, उन्होंने सब चीजों को चलाया हुआ. ही इज लाइक दैट सन जिसके आसपास पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है. सो द फैक्ट इज दिस, नथिंग मोर देन दैट. सो हमें उन्होंने अपने करीब, मतलब हमारे साथ हैं, हमारे को हर मोमेंट ब्लेस कर रहे हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट गुरुजी हैज गिवन अस बाय ही बीइंग इन आवर लाइव्स. So nothing more we want, nothing more actually. अंजू आंटी, हाँ जी. बहुत ही सुनने में अच्छा लगा जो आपने बताया ना कि महाराज तो उस सूर्य के समान है जिनके आसपास सोलर सिस्टम है.
बिल्कुल जी, बहुत ही गहरी बात की है आपने। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, आई बिलीव। दिस इज फैक्ट। हाँ जी। सो हमें तो हमारी मतलब गुरुजी तो टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी इन योर फैमिली, योर सबॉर्डिनेट, योर पेट्स, योर फैमिली पीपल, एवरीबडी। हमें पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ तो अवेयर उनको है। मैं आपको इसका एक और वो दिखाती हूँ, छोटा सा बताती हूँ एग्जाम्पल। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, आई थिंक वी वर इन फ्रांस और समवेयर। सो मेरा एक पेट डॉग है, अभी ही इज ऑल्सो इन विद गुरुजी। So that time, Guruji came in my dreams in France and he said कि तू अपने डॉग का मतलब फ्रेडी नाम है उसका, कि फ्रेडी नाम था उसका, ध्यान रखा कर। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुरुजी, पता नहीं। मैं जब वापस इंडिया आई तो मुझे पता लगा कि जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प थी वो उसको मारती थी। Oh, Yeah, and this fact was revealed to me by one of my neighbors. And when I came to know this, तो गुरुजी ने देखो इसका मुझे, उनको ये भी पता है, उन्होंने मेरे को 1 मिनट में पहले ही वहीं पे ड्रीम में दिखा दिया था कि अपने फ्रेडी का ध्यान रखा कर। एंड ऑनेस्टली आते ही मैंने उसको हटा के मतलब वो करा है, सॉरी फ्रेडी को मांगी, बेटा सॉरी देखो टॉर्चर हुआ। मतलब वो मालिक को तो सब पता है ना, तो हमारे को हमारे हाथ में है ही क्या, मतलब नथिंग, नॉट इवन वन सांस। सो हमें क्या सोचना है और क्या प्रोक्लेम करना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वी हैव टू बी, जैसे गुरुजी कहते थे कि अकल ते रफल बाहर छड़ के आओ, हमारे पास अकड़ करने के लिए भी है क्या? मतलब एक सिंपल सी बात है, हमारे करेक्ट। को मतलब वी हैव नथिंग ऑफ आवर्स, एवरीथिंग इज हिज गिफ्ट टू अस। हमारे को किस चीज का अभिमान और ईगो होनी चाहिए जब हमारे को पता ही नहीं, हमारा लाइफ भी उनकी है, ब्रेथ भी उनका है, अगली हर। सांस का नहीं पता किसी को। हाँ जी, अगली सांस का नहीं पता किसी को। अगली सांस का नहीं पता है, तो किस बात की ईगो और किस बात के टैंट्रम्स। मतलब मेरे को लगता है हम खाली हाथ आए और वैसे ही चले जाएंगे। सो वी कैन बी मेक अ, इट्स अ ट्रांजिट प्लेस, और हमारे को उसमें भी भगवान ने अपने दर्शन दे दिए। तो मतलब उससे अच्छी लक तो नहीं हो सकती है, ये पक्का है। और महाराज तो जन्म जन्म को स्कैन करते थे ना, सिर्फ इस जन्म की बात थोड़ी है। हाँ जी, वो बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ग्लांस में हमारे जन्मों को स्कैन कर लेते थे, तो उनके आगे हमने क्या दिखाना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वी कैन नॉट बी, अभी ही नोज अस, जो भी हम दिखा लें उन्हें पता है हम क्या है, सबसे बड़ी बात है। एंड यू इम्प्रूव ऑल्सो एज अ पर्सन। मैं खुद बहुत इम्प्रूव, आई बिलीव आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बिकॉज आपको अपनी कमियों का और पता चलता है गुरुजी के साथ। आपको सबसे बढ़िया मतलब मुझे एक चीज लगी, गुरुजी ने कभी कोई सर्मन्स नहीं दिए, कोई ज्ञान नहीं दिया हमारे को, उन्होंने हमारा माइंड ही चेंज करते ही चले गए वो। सो ही मेड अस अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर इंडिविजुअल एवरी डे। और आज भी हमारी वही कोशिश है, या कि हम एटलीस्ट अच्छे इंसान बन जाए, वही बहुत है इस मैनकाइंड के लिए। हम और क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे को नेचर कितना देती है, हर वक्त थैंकलेस है हम, फिर भी हमें हर ऑक्सीजन, पानी, मतलब ये सब सिर्फ भगवान ही दे रहा है ना, और हम किसी को वापस तो करने के किसी कुछ भी लायक ही नहीं है। सो मनी इज सो ट्रिवियल, बट ये है कि मनी मेक्स द मेयर गो, दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। बट वो भी गुरु जी को पता है कितना किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। मतलब मुझे लगता है एवरीथिंग इज अ साइड इफेक्ट। हमें मालिक मिल गए, हमारे को एक पॉइंट पे लगता है इच्छाएं क्या है ही कुछ नहीं, फ्रैंकली कुछ नहीं है। आपकी फैमिली खुश है, आप इकट्ठे, हम लोग बोलते हैं हमें मिरेकल चाहिए, बट सबसे बड़ा मिरेकल है हम अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली अपने घर में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर एक दिन हमें हॉस्पिटल रहना पड़ जाए तो लाइफ का मतलब पता चल जाएगा कि कितनी डिफिकल्ट है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल दैट वी ऑल आर हैप्पी एंड सिटिंग टुगेदर हैविंग fun and enjoyment and food together. So that's very simple. Indeed, this is the fact. This is the fact. Gee, that's what. Let's read it. Yeah. Sorry. Okay, so this I read. The health of my daughter too was a source of worry for me. She had recurrent and troublesome UTI. Guruji blessed her with a copper tumbler and she drank water from it and soon was well. I also had extreme pain in my knees that I had difficulty in climbing the stairs. By his divine grace, this pain also vanished. My sister-in-law too partook of his grace. She was living in UK with her husband, but due to some problem with her in-laws, she had been in conflict with her husband and had left his house and came to India. She had made up her mind to divorce him. Guruji's blessings saved off that disastrous turn of events and the harmony was restored.
Now, I would like to say that initially the harmony was restored, but then she was blessed with a baby boy and they soon parted off also because maybe that was not good for her or she was not happy. Again, that's Guruji's wish and ichha. Jo hota hai, wo achhe ke liye hota hai. Then, in fact, Guruji called out my sister-in-law's name the very first time that she met him. I just narrated that. An instance of how the divinity in him reaches out to us with a miraculous love. In a similar manner, Guruji also answers our deep-seated queries and can read our thoughts. This is for sure. Yes. After Yes. After Guruji came into our lives, everything got streamlined. It's due to our good karmas that Guruji has come into our life. We always feel his shield around us. He defends us from the unforeseen calamities. There are so many matters that get sorted out thanks to him. The external disturbances caused by the external agents are eliminated on their own. आंटी बात बताएं तो क्या हम गुरुजी को चमत्कार करने वाले गुरुजी के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? Chamatkar is such a small word for such a big Bhagwan. Guruji is not only Chamatkar. Chamatkar तो मतलब मुझे लगता है एक वो तो साइड इफेक्ट है. गुरुजी तो परमात्मा है. ही इज मालिक, ही इज भगवान. एंड चमत्कार इज वेरी लो. मतलब अगर वो हमारे साथ है तो लाइफ हैज टू बी फुल ऑफ चमत्कार्स. एवरी मोमेंट इज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड. एवरी मोमेंट इज ग्रेट बिकॉज हमारे साथ हमारे मालिक हैं. एंड चमत्कार तो बिल्कुल भी मतलब वो तो मेरे को लगता है कई लोगों को विश्वास नहीं होता तो गुरुजी को दिखाना पड़ता है. बट हमारी लाइफ तो ऑलरेडी फुल ऑफ चमत्कार है बिकॉज हमें मालिक मिल गए हैं. So he is Paramatma. Chamatkari, he is not a saint or he is not somebody who does chamatkar and proves it. He doesn't need any proof. He is everything. He is, as I told you, he is the son of our system. So, chamatkar word is very small. Matlab. But why does Sangat always expect, that he should show his presence? Like रोटी पे ओम बन गया है या मुझे परेशानी में गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिख गया तो मेरी परेशानियां दूर हो गई. या मैं ये चाहती थी, मैं सूट चाहती थी और गुरुजी ने मुझे 2,500 का सूट भेज दिया. आंटी मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ ना, मेरा मन बहुत दुखता है. देखो मैं आपको बताऊं, आप और मैं जो है ना, हम गुरुजी के साथ रहे हैं ना, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स. बट जब मैं संगत के ऐसे सत्संग सुनती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछने के पीछे वही एक रीजन था. आई बिलीव संगत ने गुरुजी को सिर्फ यही समझ लिया. कभी हम बोले गुरु नानक बाबा जी आप नीचे आके अपने आप को प्रूव करो, या कभी हम बोले साईं बाबा आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ. वी नेवर से लाइक दिस. Then why they always expect Guruji to show something or the other thing so that we have trust in him? ये संगत के साथ दिक्कत है. नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसे लगता है कि संगत डजंट नो अबाउट गुरुजी मच. एंड देखो वो उनका कई लोग तो आधे लोग तो मंदिर इसलिए भी आते हैं कि उन्हें पता है यहाँ लंगर प्रसाद मिलता है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि वो कहाँ आ रहे हैं. इट्स लाइक they just are going because it's a ragmarole thing. It's a way of being or way of doing things. तो लोगों को मैं तो वही बोलती हूँ कि रोटी में ओम प्रसाद बन गया या गुरुजी की फोटो में स्वरूप में अमृत आ गया, ये सब तो एक माइनर साइड इफेक्ट्स हैं. मैं वही बोलती हूँ हमारे को भगवान मिल गया, nobody sees that. बट यही है कि आई थिंक हाउ पीपल कनेक्ट, उनको हमारी जो सोच है, वो हमारी जो थॉट्स हैं, वो तो बहुत बेस है ना, बेसिक बेस है. तभी वो हम छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो ऐसे होगा. मे बी बिकॉज दैट्स द वे ऑफ देयर बीइंग कनेक्टेड, दैट्स हाउ, दैट इज द बेसिक स्टेज, द प्राइमरी स्टेज वेयर दे बिलीव कि ये होगा तो हम ऐसा मानेंगे. बट अगेन इट्स गुरुजी. बिकॉज मैं जब शुरू में आई थी तो मुझे भी लगता था इतनी चीजें ये सब हो जाएंगी, देन ही इज समथिंग. नो, बट आई विद माई एक्सपीरियंस, विद द शेयरिंग, विद हाउ गुरुजी चेंजेस योर लाइफ, यू कम टू नो दैट आप कहाँ पर आए हो. इस जगह का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो ये स्थान है, कितना मतलब दिस इज द मोस्ट पाक स्थान, सबसे पवित्र जगह है ये. सो मतलब फॉरगेट अबाउट दैट, हमें परमात्मा मिले हैं. ये भी आई थिंक एज दे इंटरैक्ट मोर तो they'll come to know कि which place are they standing on actually, और कौन है गुरुजी. So it's
जितना जिसको समझ है, जितनी जिसको ज्ञान है, उस हिसाब से दे टॉक अगेन, दे विल लर्न आई बिलीव। और मुझे ऐसे लगता है कि सत्संग गुरु जी के या उनकी बातें, उनकी महिमा जितनी करी जाएगी तो उनके डाउट्स भी और क्लियर होंगे। एंड दे दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर दैट आंटी, या अपने मन के गुंजन खोलन वास्ते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो हमने गांठे बना लेते हैं ना, जो संगत यहाँ से सुन, वहां से सुन, यहाँ से सुन, ऐसे कर वैसे कर, ये उन सब गांठों को खोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। बिल्कुल क्योंकि जी, वो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो गुरु जी के साथ एज अ गॉड मान के गुरु जी को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़े। राइट राइट राइट। है ना? इवन हमारे को भी मुझे लगता है गुरुजी ने मेरे को भी बहुत सत्संग में भेजा, बहुत सत्संग सुनवाए, बहुत जगह लंगर प्रसाद कराए। सो इट्स ऑल अ नीड। तो आई थिंक, और ये जो सत्संग हैं जो आप कर रहे हैं, दिस इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आई बिलीव। इट्स अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। या बिकॉज ये जो करेगा वो ऐसी तो लाइट ऑफ डिविनिटी पता भी नहीं था किसी को आएगी, बट है ना, दैट इज हाउ इट केम। बिकॉज जब हमें गुरुजी ने बोला कि अपने सत्संग जाके कंपाइल करके आओ, हमें लगा था पता नहीं गुरुजी क्यों करवा रहे हैं। बिकॉज यही लगता था कि गुरुजी क्यों एक एक सत्संग लिखवा रहे हैं, क्यों एक एक सत्संग को बोलते हैं हाँ तू लेके, और खोलते भी नहीं थे और कहते थे नहीं इन्हों दोबारा कर क्या, इन्हों दोबारा लिख क्या, और अच्छी तरह लिख। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। वी नेवर न्यू कि ये ऐसे हो जाएगा एक दिन। महाराज को पता था ना। मेरे को एक बार ही जब हम बैठे थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने जब मुझे बोला कि अपने सत्संग जाके लिख के आ, तो मैं उनको इन द फॉर्म ऑफ पेपर लेके चली गई थी। तो मुझे गुरुजी ने डांट मारी, तू पुठे काम कर दिए, तेनू क्या है ना सीडी लेके आ कंपाइल करके। मेरे को मन में लगा मुझे तो डांटा है गुरुजी ने, मेरे को तो बड़ा वो आ रहा है कि क्यों बोला है उन्होंने मुझे ऐसे। मैं तो अपनी तरफ से कोई पुठा काम नहीं किया, जैसा मुझे पता था। तो मैंने अगले दिन सोचा कि मैं अब गुरुजी को सत्संग नहीं दूंगी, सीडी में मैं किसी सेवादार को दे दूंगी। सो हाउ गुरुजी इज, कितने प्यारे भगवान है वो। मुझे जब मैं अगले दिन वो सीडी की फॉर्म में कंपाइल में करके लेके गई, तो मुझे कहते हैं ले आई है तू। मतलब सबसे पहले मैंने छुपाया हुआ था उनसे कि सेवादार को दूंगी किसी, बट कहते तू ले आई, और उन्हें वो सीडी लेके अपने सीट के नीचे रख। तब उन्होंने मुझे बोला एक बात गुरुजी ने, ए ना अमेरिका विच कंजर पढ़ेंगे। दिस टोल्ड मी फॉर दैट। Now, this means that this satsang will be on internet, on media. Because तब तक तो गुरुजी मीडिया पे थे नहीं ना, बट ही सेड ए ना अमेरिका विच कंजर पढ़ेंगे। तब मेरे को समझ में बात आई कि दिस विल फ्लोट ऑन नेट, बट स्टिल हमें तो ये नहीं पता था कि गुरुजी हमें फिजिकली छोड़ देंगे इतनी जल्दी, ही विल लीव अस। बिल्कुल बिल्कुल। So those were the first satsangs that got published in the Light of Divinity, the first Light of Divinity. That was all the satsang which Guruji had personally told people कि आप अपने सत्संग लेकर आओ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। तो वो सारे वही पब्लिश हुए थे फर्स्ट लाइट ऑफ डिविनिटी में। एंड दिस बुक लाइट ऑफ डिविनिटी, आई बिलीव इट्स अ आंटी कनेक्शन चला गया क्या? हेलो हेलो आंटी कनेक्शन चला गया क्या? सुरेश अंकल, can you hear me? Is it okay now? Now it has come. Okay. I don't know what happened. You are audible, auntie. Okay. So that's what, and this is how the things I believe work. I'll read. Should I start reading the other things? हाँ जी. Okay. So okay. After Guruji came into our lives, everything got streamlined. It is due to our good karmas that Guruji has come into our life. We feel his shield around us. He defends us from the unforeseen calamities. The external disturbances caused by the external agents are eliminated on their own. More so, the persona, the outlook, and the attitude I have undergone is of a complete change. I am fully at peace after Guruji entered my life. We thank Guruji with all our heart and soul for being there for all of us, for being so benevolent, and for his presence. We thank him again and again, as a life without him could not be possible. Our small lives are insignificant without him. He is beyond comparison. Guruji is human manifestation of God. He came into this world only for our kalyan, our highest benefit.
So जय गुरु जी। जय yeah, गुरु जी। yeah. So that's what I can go on and on again with my satsang if you want, if the time permits. Should You may I? go, auntie. You may go, auntie. Okay. So I'll just share a few more instances of my this thing with Guruji. Now, one day Guruji told me कि तू जाके ना मेनका गांधी की एग्जीबिशन लगी हुई थी रिलीजियस पेंटिंग्स की, रवि वर्मा उनकी मेरे ख्याल से थी हायत होटल में. तो गुरुजी टोल्ड मी जाके ना तू 2 पेंटिंग्स लेकर आ. मेरे लिए हुक्म था वो. सो आई वेंट देयर एंड व्हेन आई रीच देयर I was carrying just 11,000 in my pocket, which was at that point of time good enough money for the paintings. But when I went there, no painting was less than 25,000. और मुझे गुरुजी का हुक्म था कि 2 लेनी है, तो मैंने तो मन में सोचा गुरुजी ने मुझे फंसा दिया है कि अब मैंने 2 लेनी है, उनका हुक्म मानना है और पैसे तो पड़े नहीं मेरे पास. So suddenly I saw there were 2 paintings lying in the corner, 5,500 each. That Wow. makes it that's make it 11,000. And I just got those 2 paintings packed and next day I took them. So I went to the mandir, Empire State, and told Guruji मैं paintings लेकर आ गई हूँ. तो उन्हें नहीं पता था कि मेरी पेंटिंग्स में क्या है. नाउ एक पेंटिंग थी लॉर्ड शिवा, काशी विश्वनाथ, and one painting was Vishnuji with his 2 wives. So Guruji called out Menka and said, Menka देख ये तेरी एग्जीबिशन गई सी and 2 पेंटिंग्स लेके आ गई है, शिवा घर लेके आ गई है. Now that is again Guruji how he proved to every moment कि मुझे सब पता है तुम क्या कर रहे हो, you know. I know. And I said thank you Guruji. मतलब मुझे तो इट वॉज लाइक लव, यू नो. मेरे को तो एक जैसे कहते हैं ना, आई वॉज इन लव विद गुरुजी. मुझे तो लगता था घर जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं मैं बैठी रहूं. एंड बड़े मंदिर में जब बड़े फंक्शंस होते थे, आई यूज टू यू नो कीप माई सेल्फ हाइडिंग फ्रॉम हिम कि वो अभी आज्ञा दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जाता था साथ. तो मुझे लगता था कि वो घर पे है और रात को लेट हो जाता था, तो मुझे पता था कि गुरुजी मुझे भेजेंगे, तो मैं छुपती होती थी. तो गुरुजी मुझे पता नहीं कहाँ से बोलते थे, गटर कैलाश वाले ये घर जाओ. मतलब स्पेशली यूज टू कॉल मी बिकॉज मेरे को लगता था कि वो अभी मुझे आज्ञा दे देंगे ना दें, पर वो दे देते थे कि तुम्हारा इंतजार हो रहा है घर में. मतलब ही नोज एवरी बिट ऑफ लाइफ. Then one more satsang I'll share with you. This was not in the book because मैंने वो नहीं publish करा हुआ था. One day Guruji told me कि मेरे बहुत इच्छा होती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे घर के पास आके रहें. I was the only daughter and मेरे को था कि पेरेंट्स को पास रहना चाहिए. जब से मेरे फादर बीमार होके चुके थे तो मुझे था. तो one day I was just having a thought, मुझे था गुरुजी से पूछना तो है नहीं, वो मना करते हैं, तो कि मेरे पेरेंट्स को मैं पास लेके आना चाहती हूँ साउथ दिल्ली. सो गुरुजी ने मेरे को बोला किधर रहते हैं तेरे माँ प्यो. ऐसे गुरुजी अशोक विहार रहते हैं. कहते हैं उन्होंने अपने नेड़े ले आओ. सो आई सेड आई वाज शाउटिंग विद जॉय, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी. तो आप मानेंगे नहीं, विद इन 3 months दे शिफ्टेड टू साउथ दिल्ली 1 kilometer फ्रॉम माई हाउस. एंड with मतलब transition from North Delhi to South Delhi requires more money, right? But 5 lakhs उनकी पॉकेट में बचे थे. Point is that, and they could get a house which was much better than where they were living. वो second floor पे थे, यहाँ उन्हें ground floor मिला. मतलब everything was in their favor. And forget about that. उसके बाद वो मेरे first floor पे आके रहने लग गए थे after 7 years. So गुरुजी इससे ज्यादा नेड़े तो अब हो नहीं सकता. So that's what गुरुजी made it. मतलब एक छोटी छोटी मैं आपको बता रही हूँ उनकी कही हुई बात किस तरह से वो हाउ इट मैटर्स, हाउ इट चेंजेस. और हमें अपना भूलना नहीं चाहिए हम जिस कंडीशन में गुरुजी पे गए हैं. ट्रस्ट मी, गुरुजी हैज चेंज एंटायर थिंग ऑफ माइंड. 360 डिग्री चेंज करा है उन्होंने ऑन एवरी फ्रंट. हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, रिलेशनशिप्स वाइज, हार्मनी वाइज, हैप्पीनेस वाइज, गुरुजी हैज चेंज एवरीथिंग. और बिना मांगे सब कुछ दे दिया उन्होंने. मतलब मुझे तो पता ही नहीं मुझे मांगना क्या है, बट उन्होंने मुझे सब कुछ दिया. टुडे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ गुरुजी हमें वो हैंडफुल ऑफ सत्संग, हैंडफुल ऑफ संगत में रखें जिन्हें वो प्यार करते हैं और मतलब जिनके दिल के पास हम हैं. मतलब इसी लायक बस रहे हम. ही ऑल्सो महाराज अपने चरणों में हमें जगह दिए रहे, बस हाथ पकड़े रहे हमारा
हम कितनी बार बोलते हैं ना, हम नादान हैं, वी कैन लीव हिम बट ही शुड नेवर लीव अस, एब्सोल्युटली, पकड़ के हमें बैठे रहे महाराज, बस के जाना नहीं बिल्कुल, किते। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। देन वन डे माय हस्बैंड्स ब्रदर्स सन, मतलब माय नेफ्यू, हस्बैंड्स नेफ्यू, उसका ही हैड सम प्रॉब्लम, ही वाज 8 years ओल्ड, एंड उस बच्चे को एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसको बोलते हैं गुलनबारी सिंड्रोम, विच हैपेंस इन 1 in lakhs। उसमें पूरी बॉडी आपकी बिकम्स वेजिटेबल। सो वो बच्चा 8 years का बच्चा वाज हैड दैट प्रॉब्लम, एंड वो भी वेंटिलेटर पे चला गया था। बट मैंने ये, माय हस्बैंड यूज्ड टू आस्क कि गुरुजी को पूछो, मैंने नहीं पूछा, बिकॉज वो कहते थे पूछा मत करो। आप मानेंगे नहीं, मेरे बस एक उनसे मन में अरदास थी, गुरुजी उसका वेंटिलेटर बच्चे का कब उतरेगा। तो मुझे एक टेलीपैथिकली ऐसे उनसे ऐसे लगा, मुझे वो कह रहे हैं वेडनेसडे को, और आप मानेंगे नहीं, वेडनेसडे वाज द फर्स्ट डे उस बच्चे का वेंटिलेटर उतरा। उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल क्योर हो गया, और बाद में पता चला कि जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उसको कर रही थी ट्रीट, शी वाज आल्सो गुरुजीज भक्त, और उन्होंने उस गुरुजी का स्वरूप उसके पिलो के नीचे रखा हुआ था। एंड दैट बॉय शोड सो अमेजिंग रिकवरी, मतलब वो बच्चा फुटबॉल प्लेयर बना अपनी टीम का, देन ही इज वेरी इंजीनियर है वो बच्चा आज। सो वही है कि हाउ, मतलब गुरुजी कैसे हर चीज बदल देते हैं, दैट्स हिज ग्रेस, वही है। एंड उन्होंने सब कुछ बदल दिया। सो मतलब गुरुजी डज, ये नहीं कि हमें तो इतने कल्याण ऐसे हैं जो पता ही नहीं है वो कर रहे हैं, हमारे साथ हो गए हैं। उन्होंने हमारे कैंसर हटा दिए, हमें बुखार होता है फिर भी कंप्लेन करते हैं ना, बुखार हो गए, अरे आपको ये नहीं पता आपका कैंसर क्योर करके बुखार कर रहा है। मतलब हमें तो हर चीज में वो है, बट हमें लगता है कि उनकी रजा में रहो, और हर चीज में जो वो कर रहे हैं, थैंक यू गुरुजी, बिकॉज हम इससे ज्यादा किसी चीज के लायक नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वी आर, मतलब एवरीथिंग इज अ गिफ्ट टू अस। एंड गुरुजी को, मैं नॉनवेज, आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज, एक दिन मेरे ड्रीम में गुरुजी आके कहते हैं, मैंने, मतलब आई एम ईटिंग सम चिकन इन द मंदिर, ये मेरे को ड्रीम आया, एंड गुरुजी मुझे ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, अब मैं नहीं खाऊंगी। सो ही सेड, ही सेड चलो चंगा कीता है, छੱਡ देता। तो मैंने ये बात उनको मतलब मुझे था कि मैं उनसे बोलूंगी भी सही गुरुजी को। सो ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट एंड आई टोल्ड गुरुजी, गुरुजी मैंने ना ऐसे आपका ड्रीम आया था और आपने मेरे को वो बोला है कि मैं खा रही थी, आप गुस्सा थे। कहते खान वास्ते की नहीं है कुछ, बट तेरे लिए अच्छा नहीं है ये। सो मैंने कहा देखो मैंने छोड़ दिया। कहते चंगा कीता है। फिर भी उन्होंने चंगा कीता बोला, बिकॉज ही डिड नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी। मैंने उसके बाद भी थोड़ा खाया, मैं आपको झूठ नहीं बोलती, बट वो इवेंचुअली मेरा छूट गया बिल्कुल कंप्लीटली, बिकॉज वो हमारे को कोई फोर्स नहीं करते। गुरुजी कहते थे ना, मैं आपका मन बदल देता हूँ। फैक्ट है, ही चेंज आवर माइंड। एंड मेरे को एक बार उनको कुछ कहना था, तो मैंने उन्हें बोला, उनसे बात करनी थी, ड्रीम बता दो। मैंने उन्हें तब कहा गुरुजी अपना हाथ दो। कहते ले फड़, मैंने 20 30 40 केसेस पता नहीं करी होंगी, तो मुझे कहते हूं दफा हो, छड़ परे। सो आई थिंक दैट वाज माई लास्ट मीटिंग विद गुरुजी, एंड आफ्टर दैट आई कुड नॉट मीट हिम, बिकॉज वो उसके बाद ही टुक महासमाधि। एंड दैट डे व्हेन महासमाधि वाले दिन मैं बहुत रोई उनकी डेथ, मतलब जब वो फिजिकली हमें छोड़ा उन्होंने। आई वॉज क्राइंग कि आप कहाँ गए हो, आप कैसे जा सकते हो, हम तो अनाथ हो गए। आप मानोगे नहीं, गुरुजी मेरे ड्रीम में उसी दिन आए और उन्होंने कहा मैं किधरे नहीं गया, मैं अपना चोला बदलाया है। एंड दैट वाज अ वेरी सेम नाइट। एंड मैं ना फिर भी बहुत रोती थी, टर्निंग द साइड फ्रॉम माई हस्बैंड, एंड आई यूज्ड टू क्राई इन द नाइट की मुझे बहुत याद आती थी गुरुजी की। So one day I met a lady, an auntie in the mandir, soon after on a Monday, and she said, मुझे ना आपको एक मैसेज देना है। मैं उनको नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। मैंने बोला हाँ जी आंटी। कहते हैं गुरुजी ने ना मुझे एक मैसेज दिया आपके लिए कि कुछ लोग अपने हस्बैंड से उधर मुंह करके रोते हैं, उनको बोलो रोया मत करें, मेरा चोला भीग गया है और मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं। तो ये है हमारे भगवान, जो अपने फिजिकली ना होने के बाद भी हमारे साथ इतने साथ हैं। तो मतलब गुरुजी कहीं गए नहीं है, रादर ही इज विद अस ऑल द टाइम, एंड वी जस्ट हैव टू फील हिम। वो हमारा हर वक्त उन्होंने हाथ पकड़ा है और हमेशा पकड़े रहे, बिकॉज हम इस लायक नहीं है, पर गुरुजी हमें ना छोड़े। एंड वी हैव टू बी जस्ट थैंकफुल। शुक्रिया, और आपका शुक्राना कि आप हमारे को साथ हो हमारे। दैट्स ऑल। तभी तो बोलते हैं ना, सानू पता है बदल तू सकता है साडे हत्थां दियां लकीरां। बिल्कुल जी, वो तो बहुत कुछ बदल दिया उन्होंने, सब कुछ बदल दिया। हाँ इसीलिए जी,
जी जी टाइम मेरा ख्याल अब हो गया है, हो गया टाइम। हाँ जी, है ना? हाँ जी। थोड़ा सा लास्ट में एक लाइन बोल देती हूँ। जर्नी विद गुरुजी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप एट अ टाइम. Yeah. Guruji does not expect you to run very fast and far off, but he gives strength to go to any distance at any speed. Very अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया.